بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس انٹرویو کوچنگ کلاس میں ریپیٹڈ کوشچن جو مختلف حوالوں سے ہوئے ہیں یا متوقع ہیں انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں، پوچھے جا سکتے ہیں، اس حوالے سے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک سبجیکٹ ہمارے اسلامیات میں کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن کے حوالے سے ہے۔ کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن کے حوالے سے جتنے سوالات پوچھے گئے ہیں وہ میں نے آپ کے لیے اکٹھے کیے ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلا سوال جو پوچھا گیا ہے یا پوچھا جا سکتا ہے، قدیم ترین الہامی مذہب، سب سے قدیم ترین الہامی مذہب کون سا ہے؟ وہ آپ کا یہودیت ہے۔ یہودیت دنیا کا سب سے قدیم ترین الہامی مذہب ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو الہامی اور غیر الہامی کے بارے میں بتاتا چلوں۔ مذاہب کی دو اقسام ہے، نمبر 1، نمبر 2۔ وہ مذاہب جن کا سرچشمہ وحی الہی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین کسی نبی کے پاس پیغام لے کر آئیں، اس کو وحی الہی یعنی الہامی مذہب کہا جاتا ہے۔ یہ مذہب الہامی ہوتا ہے یا اس کو آسمانی مذہب بھی کہا جاتا ہے، یہ دونوں آپ نوٹ کر لیں، آسمانی مذہب یا الہامی مذہب۔ جب یعنی جس کا سرچشمہ وہی الہی ہو، آدم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ان کے پاس جبرائیل امین آئے، یعنی یہ الہامی مذاہب ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ الہامی مذاہب ہے۔ اور مذاہب میں سب سے پہلا جو الہامی مذہب ہے وہ یہودیت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہودیت سے پہلے جو مذاہب ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ یہودیت کی سب سے پہلی کتاب جو تورات آپ کی شکل میں موجود تھی، تو سب سے قدیم کتاب الہامی وہ تورات ہے، اور سب سے قدیم الہامی مذہب وہ آپ کا یہودیت ہے۔ جبکہ غیر الہامی مذاہب وہ مذاہب ہیں جن کا سرچشمہ وہی الہی نہ ہو، بلکہ ایک شخص اٹھے، ایک شخص کے دل میں تمنا پیدا ہو کہ دنیا کے انسانوں کی اصلاح کس طرح ہو سکے، اس لیے کوئی وے آف لائف وہ انسانوں کو دے۔ تو اس ترتیب کو یا اس مذہب کو غیر الہامی یا غیر آسمانی مذہب کہا جاتا ہے۔ مثلاً ہندوستان میں ایک شخص بابا گرو نانک اٹھے، اس نے معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری لی اور ایک نیا وے آف لائف دنیا کو دیا جس کو سکھ مذہب کہا جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے چائنا میں ایک شخص اٹھا، جین، جو مہادیر وردمان ہے، مہادیر وردمان اس کا نام ہے، اور اس نے ایک وے آف لائف انسانوں کو دیا جس کا نام جین مت ہے۔ اسی طرح ہندو مت، تھاؤ مت، یعنی کافی زیادہ مذاہب ہے، زرتشتزم، اس طرح کے لوگ اٹھے، انہوں نے دنیا کے انسانوں کی اصلاح کی۔ ان کے پاس وہی نہیں آتی تھی لیکن وہ مصلح تھے۔ یہ غیر الہامی مذہب ہے۔ تو الہامی کتاب تورات کس قوم پر نازل ہوئی؟ یہ سوال پوچھا گیا تھا۔ یہودیوں پر نازل ہوئی، یہودیوں پر، یعنی یہودی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے یہ کتاب آئی، اس لیے اس کو یہودی قوم یا بنی اسرائیل کے لیے یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور اس یہودا سے جو نسل چل نکلی ان کو بنی اسرائیل یا یہودی کہا جاتا ہے۔ اور یہ دنیا کی وہ قوم ہے جن کے پاس سب سے پہلا مذہب موجود تھا اور تورات ان پر اتری۔ اچھا، یہودیوں کے مذہبی رہنما کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے یا بار بار پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کو ربی کہا جاتا ہے، ربی۔ یہودیوں کے مذہبی رہنما یا پیشوا کو، جس طرح ہمارے مذہبی رہنما یا پیشوا کو مولوی صاحب، امام صاحب، پیر صاحب، اور اسی طرح یہودیوں کے مذہبی رہنما کو ربی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کی عبادت گاہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہودیوں کی عبادت گاہ کو کیا کہا جاتا ہے، یا ان کی سب سے بڑی عبادت گاہ کون سی تھی؟ تو یہودیوں کی عبادت گاہ کو ہیکل کہا جاتا ہے، ہیکل سلیمانی۔
सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंकि यहूदी मजहब के लिए आए, बनी इसराइल के लिए आए, उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में एक बहुत बड़ी इबादतगाह बनाई जिसका नाम हैकल सुलेमानी था। हैकल सुलेमानी, इसलिए यहूदियों की इबादतगाह को हैकल कहा जाता है। दुनिया की वाहिद यहूदी रियासत कौन सी है, ये भी पूछा जाता है। तो आपकी इसराइल दुनिया की पहली यहूदी रियासत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इंजील, ये सवाल है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इंजील यानी इल्हामी किताब है, इनके मानने वालों को क्या कहा जाता है? इनके मानने वालों को ईसाई कहा जाता है या इनको नसरानी कहा जाता है। और ये दो फिरके हैं, एक को कैथोलिक कहते हैं, कैथोलिक, जबकि दूसरे को प्रोटेस्टेंट कहते हैं। प्रोटेस्टेंट यानी ईसाई या नसरानी, ये दो ग्रुपों में डिवाइड हैं। बास को कैथोलिक कहा जाता है, बास को प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इनके दो जो है वो फिरके हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक कुंवारी माँ के बतन से पैदा हुए। उनका क्या नाम था? उनका नाम मरियम था। उनका नाम मरियम था। मरियम के वालिद के हवाले से पूछा जाता है इनके वालिद का क्या नाम था? उनके वालिद का नाम इमरान था और वालदा का नाम हमना था। उनके वालदा का नाम हमना था। अच्छा, ये है, ये किस कौम का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमानों पर उठा लिया है? ये भी सवाल पूछा गया था या पूछा जा सकता है। तो ये मुसलमानों का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमानों पर उठाए गए हैं। अच्छा, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ईसाइयों की इबादतगाह को क्या कहा जाता है? चर्च, CHURCH, चर्च। और गिरजाघर भी आप इसको कह सकते हैं, गिरजाघर, गिरजाघर। अच्छा, यहाँ पर वो मुख्तलिफ म्यूसिकी और वगैरह बजा कर जो है इतवार के दिन अपनी इबादत करते हैं, इसलिए इसको गिरजाघर भी कहते हैं। अच्छा, बुद्ध मत एक मजहब है, बुद्ध मत। बुद्ध मत के बानी का नाम क्या है? बुद्धा। बुद्ध मत के बानी का नाम जो है वो बुद्धा है। और इसकी ओरिजिन कहाँ हुई ये बताएं। बुद्ध मत की ओरिजिन का इलाका कौन सा है या जन्म किस इलाके में लिया? तो ये बरसगीर पाक व हिंद में, बुद्ध मत ने बरसगीर पाक व हिंद में इस इलाके में जो है इसकी ओरिजिन है। और यहाँ से ये मजहब या बुद्धा जो है आपका बुद्धा, वो यहाँ से ये मजहब चल निकला, ये इसका जन्म इलाका है। बुनियादी तौर पर बुद्ध मत किस मजहब की तालीमात का रद्द अमल है? तो बुद्ध मत जो है वो हिंदुइज्म, जो हिंदुओं की तालीमात है, हिंदू जो है वो गुमराह हो चुके थे, इसलिए एक नया शख्स उठा बुद्ध मत, बुद्धा, और उन्होंने एक नया वे ऑफ लाइफ दिया, इसलिए इसको हिंदू मत या हिंदुइज्म का जो है वो अपोजिट समझा जाता है। बुद्ध मत के बानी जो है वो आपके बुद्धा है और इनका नाम जो है वो गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध, ये इनके बानी का नाम है। ये आपको बताता चलूं कि महात्मा गौतम बुद्ध या बुद्धा जो है, इन्होंने किस शहर की बुनियाद रखी बरसगीर पाको हिंद के इलाके में, सब कॉन्टिनेंट में? तो वो बनारस है। बनारस की बुनियाद इसी गौतम बुद्ध ने रखी। गौतम बुद्ध का ये मुकद्दस शहर जो है वो है। अच्छा, इस मजहब के फिरके हैं, इस मजहब के बाकायदा दो फिरके हैं, जिस तरह ईसाईयत के दो फिरके हैं, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक। इस मजहब के भी दो फिरके हैं। तो कौन से फिरके हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। नया टेक्निकल सवाल है, आपको किताबों में नहीं मिलेगा। तो मुहाइना है एक, मुहाइना, आप ये अपने साथ नोट करें, लिख लिया मुहाइना। यहाँ पर हमजा आता है और यहाँ पर नून अलिफना, ये इसका एक फिरका है। जबकि इसका दूसरा फिरका जो है वो आपको बताता चलूं कि एक फिरका जो है ये आपका मुहाइना है। क्या है? मुहाइना। और इसके दूसरे जो फिरके हैं उसका नाम है हाना, गालिबन हाना इना है, हाना इना, इंशाल्लाह हाना इना, ये इसका दूसरा फिरका है। हन्ना इना मुहाइना, ये हमने पढ़ा है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन में। तो मुहाइना और हनाइना जो है ये इसके दो फिरके हैं। और ये भी पूछा जा सकता है बुद्ध मत की इबादत को क्या कहते हैं। तो ये इबादतगाह इनकी, जिस तरह उनकी गिरजाघर और हमारी मस्जिद है, उनकी इबादतगाह को पगोडा कहा जाता है। पगोडा,
بعض स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, गुरुद्वारा बताते हैं। गुरुद्वारा जो है वो सिख मत की इबादतगाह का नाम है, सिख मजहब की इबादत का नाम गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा। और पगोड़ा जो है वो आपके बुद्ध मत की इबादतगाह है। इसके अलावा जो है हिंदू मत के हवाले से सवाल होता है, बहुत बड़ा मजहब है, बहुत बड़े पैरोकार हैं इसकी, ज्यादा 1 अरब के करीब है। हिंदू मत दुनिया की किस इलाके में परवान चढ़ा ये सबको पता है, हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान इसका जन्म इलाका है, हिंदुस्तान में यहाँ पर इसकी तालीमात इकट्ठी की गई और हिंदुओं का अहम अकीदे के बारे में पूछा जाता है। उस अकीदे को आवा गुआन कहा जाता है, आवा गुआन। ये उसका बेसिक जो बिलीफ है, बेसिक अकीदा है। और इसकी 4 किताबें हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये टेक्निकल सवाल है। और वो कौन सी 4 किताबें हैं? वो है आपका ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये उसकी किताबें हैं। उसके अलावा और भी किताबें हैं, मसलन गीता उनकी किताब है, रामायण है, महाभारत है। जबकि बेसिक 4 किताबें जो है वो मैंने आपको बता दी हैं। हिंदू मत की इबादतगाह के हवाले से हो सकता है सवाल पूछे, तो उसको मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदिर इसको कहा जाता है। ये कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन के हवाले से है। और इसके अलावा हवाले से और भी आप से सवाल पूछे जा सकते हैं, मसलन कुरान अज़ीमुल शान जो है और अहदनामा कदीम की तालीमात को बहम मिलाकर एक नए मजहब की दुनिया में बुनियाद रखी गई है। कुरान अज़ीमुल शान की तालीमात है और अहदनामा कदीम है, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। तो ये बहाई मजहब है, बहाई मजहब एक नया मजहब है, बहाई मजहब। बहाउल्लाह ने इसकी बुनियाद रखी, बहाई इसलिए इसको बहाई मजहब कहा जाता है। बहाई मजहब का हेडक्वार्टर कौन सा मुल्क है? ये एक साजिश के तहत ये सिस्टम बनाई गई ताकि इस्लाम की तालीमात इस्लाम में तहरीफ की जा सके। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका इजराइल है, इसराइल में इसका हेडक्वार्टर है। और बहाई मजहब की इबादतगाह को बहाई मरकज कहा जाता है। सिख मत के हवाले से सवाल हो सकता है कि गुरु नानक कहाँ पैदा हुए? बाबा गुरु नानक, इनके जो है गुरु नानक है, इनके जो पीर साहब है या इनके इमाम साहब, उनको गुरु कहा जाता है और इसका नाम गुरु नानक है। कहाँ पैदा हुए? ननकाना साहब एक शहर है पंजाब का, ननकाना साहब, ननकाना साहब पंजाब का एक शहर है, यहाँ पर ये पैदा हुए। और इनकी मजहबी किताब का नाम ग्रंथ साहब है, ग्रंथ साहब। ये शख्स का नाम नहीं है बल्कि किताब का नाम है, ग्रंथ साहब। ये कंपैरेटिव स्टडी आप रिलीजन के हवाले से जो सवालात मुतवक्के हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ग्रंथ साहब इनकी मजहबी किताब का जो है वो नाम है। इसके अलावा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के हवाले से ये सवाल किया जा सकता है, क्योंकि ये सिख मत के साथ रिलेटेड सवाल है कि बाबा फरीदुद्दीन ने शायरी किस मजहब की मुकद्दस किताब में शामिल है? एक बाबा फरीदुद्दीन एक बहुत बड़े शायर थे, सूफी शायर, और एक मुकद्दस एक मजहब की मुकद्दस किताब में वो शायरी भी शामिल है, तो वो सिख मत है। सिख मत की जो ग्रंथ साहब है ये किताब है, इसमें बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की जो है वो शायरी शामिल है। इनकी इबादतगाह को मैंने पहले बताया गुरुद्वारा कहा जाता है। और एक ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि किन 2 मज़ाहिब के पैरोकार अपने मुर्दों को जलाते हैं? 2 मज़ाहिब है दुनिया में जो अपने मुर्दों को जलाते हैं, एक हिंदुइज्म है और एक सिख मजहब है, ये दोनों अपने मुर्दों को जलाते हैं। अच्छा, ये सवाल ये पूछा जा सकता है कौन सा मजहब खुदाई हस्ती को तस्लीम नहीं करता? वो कहते हैं देयर इज नो गॉड इन द वर्ल्ड, अस्तगफिरुल्लाह। वो कहते हैं कि अल्लाह नाउजुबिल्लाह मौजूद नहीं है, तो वो जीन मत है। वो क्या है? वो ये जीन मत है और ये मुल्हिद है। मुल्हिद, इल्हाद का अकीदा, मुल्हिद उन लोगों को कहा जाता है जो अल्लाह ताला की वजूद से इंकारी हो। किस मजहब का अकीदा है कि इंसान के रूह में पाई जाने वाली ताकत खुदा है? ये भी यानी वो डायरेक्ट इंसान की जात में जो है वो खुदा तलाश करते हैं और खुदा के वजूद से इंकारी है कि कोई सुपर नेचुरल हस्ती जो है वो मौजूद नहीं है, बल्कि इंसान नाउजुबिल्लाह खुद खुदा है। तो वो भी आपका ये जीन मत है, ये आपका जीन मत है, ये अपने साथ लिखिए। जापान के हवाले से पूछे जाते कि जापान का मजहब कौन सा है? जापान का मजहब शिनो मत, एक नया मजहब है शिनो मत। ये
शिनोमत भी इसको कहते हैं, शिंतोमत भी कहते हैं, शिनोमत या शिंतोमत, ये जापान का जो है वो मजहब है। उसके अलावा कन्फ्यूशिज्म जो है, कन्फ्यूशिज्म या कन्फ्यूश मत के पैरोकार किस मुल्क में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो आपका चाइना है। ये वो सवालात है जो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स के हवाले से इंटरव्यू में पूछे गए या पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा इंशाल्लाह नया वर्जन होगा और एक टॉपिक को सिलेक्ट करके उस पर गुफ्तगू करेंगे और ये आपके PCS CSS और दीगर इंटरव्यूज के लिए बहुत मुफीद है। हमारा साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड पर दिया हुआ आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप बर वक्त मुतल्ला हो। इस मैसेज के साथ कि गुड लक फॉर योर कमिंग फ्यूचर।